तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आगे हम लोग रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे, तो उसी सिलसिला को हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है। रिएक्टिविटी towards hydrogen, or in another word you can say formation of hydride. Okay, formation of hydride. ठीक है। तो अलग अलग हाइड्राइड का अलग अलग नाम है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स का हम लोग हाइड्राइड का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो कितने तरह का ये हाइड्राइड बनाता है ये देखेंगे, और सारे हाइड्राइड का नाम अलग अलग होता है, इसलिए नाम को जानना ज़रूरी है। ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसका नाम, जैसे कि जो ये है नाइट्रोजन हाइड्राइड है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन हाइड्राइड, लेकिन जनरली इसका नाम हम लोग लिखते हैं अमोनिया, इसलिए स्पेशल नेम है दिया हुआ, इसलिए याद रखना है। तो नाइट्रोजन हाइड्राइड को हम लोग अमोनिया बोलते हैं। नाइट्रोजन हाइड्राइड को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, याद रखना है। नाइट्रोजन हाइड्राइड इज कॉल्ड अमोनिया। सो समवेयर इफ यू फाइंड नाइट्रोजन हाइड्राइड एट दैट टाइम, don't get frightened, it is nothing but it is ammonia. Okay. And then phosphorus hydride, it is phosphorus hydride whose name is given phosphine. So phosphorus hydride is known as phosphine. Clear? And then arsenic hydride, it is called arsine. So remember the name, arsenic hydride is called arsine. Then comes the antimony hydride, it is called stibine. Okay. And the bismuth hydride, BiH3, whose name is given bismuthine. So these are the name of the hydrides. A special name is given: nitrogen hydride, ammonia; phosphorus hydride, phosphine; arsenic hydride called arsine; antimony hydride called stibine, and bismuth hydride is called bismuthine, bismuthine, whatever you say. Clear? Now the another type of hydride is also there, N2H4. It is called hydrazine. Okay, it is like this. Nitrogen and nitrogen attached with one another. This side NH2, this side NH2. So this is your hydrazine. Clear? So remember this. The different hydride has got a different names. You must remember this. P2H4. It is called diphosphine.
It is called diphosphine. It is called diphosphine. Hydrazine is also sometimes known as diamine. Hydrazine is known as, if in organic chemistry, if you are writing hydrazine, there it will be known as diamine. Okay, remember this. So this hydrazine also has got named the diamine because 2 NH2 attached with, like phosphorus, PH2, PH2. So this is called diphosphine, phosphine. PH3 is phosphine. Both the cases hydrogen is replaced by PH2, so that's why the name is given phosphine. So these are the special names you must remember. And then AS2, then AS2H4 has got a name diarsine. Clear? So these are the name. And the very special is that HN3. This is the special hydride of nitrogen. It is called hydrogen azide. Its name is hydrogen azide, or the other name is hydrozoic acid. It is called hydrozoic acid. So these are the hydrides of group 15 elements which is till date formulated or prepared in the laboratory or in the nature. So you must know the name of all these hydrides. Okay, that's why I have given you the name of all these hydrides, and you must remember this. Okay, this is one of the special hydride. The name is given hydrogen azide. Clear? Now we will move further. तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड. ठीक है, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, नाम कैसे लिखा जाता है हाइड्राइड का, ये हमने ग्रुप 15 का पढ़ लिया. अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड. तो पहला जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड का, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी कंपाउंड विथ वाटर और एसिड. वाटर या एसिड के साथ हम बाइनरी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं. ठीक है, बाइनरी मतलब दो ही चीज़ रहेगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल. बाइनरी का मतलब यही होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम जो है दो तरह का ही होता है. ठीक है ना, ओनली 2 kinds ऑफ एटम्स आर अवेलेबल. So that type of compound is known as binary compound. So when we carry out the hydrolysis of this binary compound with the help of water or aqueous solution of acid, then only you will get the hydrides of group 15 elements. Okay, so we'll take some example and try to understand it. Okay, so first of all we'll take the binary compound Mg3N2. Name is magnesium nitride. Magnesium nitride will carry out the hydrolysis. Okay, so how to carry out the hydrolysis is carried out. Hydrolysis means reaction of water. When water reacts with certain thing by undergoing ionization. But that means in case of hydrolysis, first of all water undergoes ionization, then it will interact with the binary compound. This is called hydrolysis. Okay, so this is hydrolysis, not the hydration. When water reacts with certain thing as a water only, then it is called hydration. But here water will undergo dissociation, produces H+ ion, OH- ion, and then reacts with certain other thing.
देन इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रो वाटर का आयनाइजेशन होगा, फिर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, और साथ में हमको जो है हाइड्राइड मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम 3 है, ये 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्राइड, और हमको यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला, और साथ में जो है हाइड्राइड मिल गया अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्राइड से अमोनिया मिल गया। उसी तरह से अगर हम ले लेते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड, क्या लेंगे, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, इसका भी रिएक्शन करा देंगे तो हमको मिल जाएगा फॉस्फिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा इधर, और इधर मिल जाएगा फॉस्फिन। तो दूसरा हाइड्राइड मिला कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते जाएंगे कि ये है बाइनरी कंपाउंड, क्योंकि दो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से सिर्फ बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, तो वाटर के साथ हमने बता दिया हाइड्रोलिसिस। अब जो है कुछ एग्जाम्पल लेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम लोग लेते हैं Zn3AS2, ये हो गया जिंक आर्सेनाइड, जिंक आर्सेनाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे। ठीक है, हम लोग मिलेगा एक सॉल्ट मिलेगा जिंक क्लोराइड का, और आर्सेनिक हाइड्राइड मिलेगा जिसको हम लोग आर्साइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम बिस्मुथेनाइट, बिस्मुथेनाइट। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे एसिड से, तो हमको मिल जाएगा फिर से मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में मिलेगा बिस्मथ हाइड्राइड। ठीक है, तो जितने तरह का हम लोग नॉर्मल हाइड्राइड पढ़े थे सबका एक एक एग्जाम्पल दे दिए। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। हाइड्रोलिसिस किससे कराया जाता है, वाटर से या डाइल्यूट एसिड से कराया जाता है। ये एक मेथड हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है दूसरा तरीका पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड का। सो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड बाय रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स का ट्राइक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, तो उसके ट्राइक्लोराइड से हम लोग बनाएंगे। ट्राइक्लोराइड को हम लोग रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ट्राइक्लोराइड को रिड्यूस करने से हमको मिल जाएगा उसका रेस्पेक्टिव हाइड्राइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल पहले हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लिख रहे हैं हम लोग ECl3, मतलब E हो गया ग्रुप 15 एलिमेंट्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेगा। जानते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज a rich source of hydrogen, that is why it is used as a reducing agent. Okay,
So we take it. So we'll get the hydride of group 15 elements. Along with that, we'll get lithium chloride, okay, as well as aluminium hydride. So अब हम लोग जनरली कोई भी दे सकते हैं। अब यहाँ ई के बदले हम कुछ भी लिख सकते हैं। ई के बदले ई का मतलब हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, कोई भी ले सकते हो। जैसे हम एक लेकर के दिखा देते हैं, जैसे नाइट्रोजन का हो गया NCl3 + 3Li lithium aluminium hydride, then we'll get the NH3 ammonia and we'll get 3 lithium chloride. Along with that we'll get the 3 aluminium hydride. तो ई के जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए जनरल एक फार्मूला लिख दिए, इससे बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड है जिसके सहारे हम लोग जो है हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और तो ये दोनों मेथड आना चाहिए। ठीक है, इसमें से केमिकल इक्वेशंस आता है एग्जाम में, तो इसको पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड। ग्रुप 15 हाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, फिर भी यहाँ पर वापस फिर पढ़ लेते हैं ताकि याद आ जाए क्या पढ़े थे। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स का मेंबर कौन है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ठीक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो सेंट्रल एटम का काम यही करेगा। तो हाइड्राइड कौन कौन है यहाँ पर? हाइड्राइड हमारे पास कौन कौन है? NH3 है, PH3 है, ASH3 है, ठीक है, उसके बाद SbH3 है और BiH3। तो हम लोग NH3 का एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन कर देते हैं। सबका शेप तो एक ही है क्योंकि सबका फॉर्मूला सेम है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सेम है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो NH3 होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, तभी तो अमोनिया बनेगा ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1s2 2s2 2p 7 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ 2p3 हो गया, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाना है। तो ये तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और ये लोन पेयर के रूप में रहेगा। ये सारा मर्ज करेगा और बनाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर 4 जो है ऑर्बिटल बनेगा sp3। ये सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। तो एक में जो है ये रहेगा, बाकी 3 हाफ फील्ड रहेगा और इसी में जो है हाइड्रोजन आकर के इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते ही हो, 1s1 होता है, ठीक है, 1s 1s 1s, ये 1s हुआ, ये 1s हुआ, सबके साथ ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, इसके साथ हो गया, ये लोन पेयर के रूप में रह जाएगा। ये सब तो sp3 है, sp3 है, sp3 है, sp3 है। ठीक है, ये सब डिटेल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल तो हम जाएंगे नहीं। ठीक है, या इस आपको 4 हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। तो चारों 1 2 3 है, 4 हाइड्रोजन बोल रहे हैं, 3 ही हाइड्रोजन है ना। तो 3 के साथ तो बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर। और जानते हो कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है।
ठीक है। sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। यानी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अमोनिया का टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे टेट्राहेड्रल का शेप बनाते हैं। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल का शेप है, इसको शॉर्टकट में हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया, ये सेंट्रल एटम है, यहाँ नाइट्रोजन हो गया, तो इसके लिए ये डंडा देंगे, इसके लिए ये डंडा देंगे, इसके लिए ये डंडा देंगे, और इसके लिए ये डंडा देंगे। ठीक है, यही तो है। इसमें हम दिखा रहे हैं कि एक लोन पेयर है, और यहाँ पर जो है शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शेयरिंग हो गया, यहाँ पर शेयरिंग हो गया, यहाँ पर शेयरिंग हो गया। ये 1s हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, ये sp3 हो गया नाइट्रोजन का, sp3 sp3 sp3। तो ये टेट्राहेड्रल शेप होगा। ये जैसे इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको हम ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे आपस में मिला देंगे, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन टेट्राहेड्रल शेप तो रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है, इसमें जो बॉन्ड जो है, एक जो है नॉन बॉन्डिंग पेयर है, तो सब पर है लोन पेयर, सब पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सभी पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चारों यहाँ पेयर। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्ड तो बना नहीं है। ठीक है, बॉन्ड तो बना नहीं है, तो बॉन्ड हम नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड बना नहीं है, शेयरिंग हुआ नहीं है। सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे यहाँ पर। ये तो गायब हो गया, तो जब ये गायब हो गया तो कैसा दिखता है, अगर इसको हम ऐसे, इसको ऐसे नीचे ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल के ऊपर ये है तो हो गया पिरामिडल। तो इसीलिए शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, ये जब पेयर सिर्फ लोन पेयर है, कोई बॉन्ड बना नहीं रहा है, तो शेप में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ इसी तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। और ये तीनों मिल करके इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, तो एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के ऊपर यहाँ नाइट्रोजन ऊपर में है, तो ट्रायंगल के ऊपर है, तो इसलिए क्या पिरामिड की तरह दिखता है, इसलिए इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। इस शेप को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल। जैसे इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, तो नीचे एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल के ऊपर ये नाइट्रोजन है ऊपर में। ठीक है, सब पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों पेयर जो है, ये तीनों पेयर तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये जो एक लोन पेयर अवेलेबल है ना, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर, इसी के चलते इसका शेप जो होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, हो गया पिरामिडल। इसलिए इसके शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो अमोनिया का शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्रुप 15 एलिमेंट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, सबका तो सेम ही है, सबका NH2 ही है, तो सब में हाइब्रिडाइजेशन जो है सेम आएगा, सब में हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का सेम आएगा sp3, और सब में एक ही लोन पेयर रहेगा। तो एक लोन पेयर होने की वजह से डिस्टॉर्शन हो जाएगा सब। तो ये सारे का शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन सारे का जो सेंट्रल एटम है, इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस, इसमें सेंट्रल एटम आर्सेनिक, इसमें सेंट्रल एटम एंटीमनी, इसमें सेंट्रल एटम बिस्मथ। तो ये सारे सेंट्रल एटम के ऊपर जो है एक लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है सेंट्रल एटम, इसके कारण इसके
जो ओरिजिनल शेप टेट्राहेड्रल है उसमें डिस्टॉर्शन आ गया, और डिस्टॉर्शन होने के बाद टेट्राहेड्रल हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। और एक चीज़ है कि टेट्राहेड्रल अगर शेप होता तो इसका कुछ एंगल होता, जो टेट्राहेड्रल के शेप में एंगल होता है वही न रहेगा, 109 पॉइंट समथिंग होता है वो रहता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि एक लोन पेयर आ गया, और VSEPR थ्योरी पढ़े हो तो लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये सारा सिकुड़ भी गया, जिसके कारण बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल एंगल के कंपैरिजन में कम हो गया। ठीक है, इसका जो बॉन्ड एंगल है टेट्राहेड्रल एंगल के कंपैरिजन में कम हो गया। ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये 107 हो गया। ये जो बॉन्ड एंगल है ये हो गया 107.8। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो हो गया 107.8 हो गया। ठीक है, जो कि टेट्राहेड्रल एंगल जो 109 पॉइंट समथिंग होता है उससे कम है। तो टेट्राहेड्रल एंगल से इसका बॉन्ड एंगल कम हो गया। क्यों हो गया कम? क्योंकि ये जो लोन पेयर है यहाँ पर, ये लोन पेयर और ये बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन हुआ, इस लोन पेयर और इस बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन हुआ, इस लोन पेयर और इस बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन हुआ। तो रिपल्सन हुआ तो इससे सब दूर भागेगा, इससे ये भी दूर भागा इधर आएगा, इससे भी ये दूर भागा इधर आया, ये भी इससे दूर भागा लग जाएगा। और ये सब बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर है, ये भी बॉन्डिंग पेयर है। बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन कम होता है और बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर का जो रिपल्सन के चलते वो दब गया, नज़दीक आ गया सारा बॉन्ड, तीनों बॉन्ड, और इसीलिए बॉन्ड एंगल जो है कम हो गया। अब ये टेट्राहेड्रल एंगल के बराबर नहीं रह गया, उससे कम हो गया, ये हो गया 107.8 हो गया। ठीक है ना, जो अराउंड 109 के पास रहता है टेट्राहेड्रल में, वो हो गया अराउंड 107.8 हो गया। तो बॉन्ड एंगल भी घट गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तो शेप इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया जो है ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं रहा, पिरामिडल क्यों हो गया। ये दूसरा कि इसका बॉन्ड एंगल क्यों कम हो गया। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, वो दोनों आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, कि बॉन्ड एंगल क्यों रिड्यूस हो गया, टेट्राहेड्रल एंगल के बराबर क्यों नहीं रहा, और दूसरा इसका शेप टेट्राहेड्रल क्यों नहीं रहा, इसका शेप जो है ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों हो गया। ये दोनों दो क्वेश्चन इसमें जो है रहता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, उसको सॉल्व कर लेना है, अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बॉन्ड एंगल अभी पढ़ लिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। अब है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप 15 द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे, हाइड्राइड का जो बॉन्ड एंगल है ना वो डिक्रीज करता जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया का है, और सबसे कम जो है बॉन्ड एंगल वो बिस्मथ हाइड्राइड में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है तो देखना है। सबका तो शेप सेम है, ट्रायगोनल पिरामिडल, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। सबका शेप सेम है, ट्रायगोनल पिरामिडल है, सबके ऊपर एक लोन पेयर है और 3 बॉन्डिंग पेयर है। तो फिर इसके बॉन्ड एंगल में डिफरेंस कहाँ से आ जाता है? बॉन्ड एंगल में डिफरेंस कहाँ से आ जाता है, ये तो सोचना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये शेप क्या है। जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन है तो ये हो गया, और एक लोन पेयर यहाँ पर है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब देखिए कि एक लोन पेयर यहाँ है, दूसरा बॉन्डिंग पेयर यहाँ पर है, तीसरा बॉन्डिंग पेयर यहाँ पर। तो ये जो बॉन्ड बना है ये तो बॉन्डिंग पेयर से बना हुआ है। जो बॉन्ड बना है तो बॉन्डिंग पेयर से बना हुआ है ना। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ है, बॉन्डिंग पेयर से बना हुआ है, ये बॉन्डिंग पेयर है और ये नॉन बॉन्डिंग पेयर है। तो
अब जैसे हम फॉस्फोरस PH3 लेंगे उसका भी यही होगा, ठीक है। तो इसमें भी एक लोन पेयर होगा और इसमें भी बॉन्डिंग पेयर होगा। ठीक है, अभी दो ही बनाए, अब बाकी का आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल, इसका भी ट्रायगोनल पिरामिडल है, इसका भी ट्रायगोनल पिरामिडल है, इसमें भी 3 बॉन्डिंग पेयर है, इसमें भी 3 बॉन्डिंग पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है। तो क्या डिफरेंस इस दोनों में हो गया कि बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट हो गया। ये तो कंफर्म है कि सारा बॉन्ड एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम ही होगा, लेकिन यहाँ भी घट रहा है ना टॉप टू बॉटम। क्यों घट रहा है? उसका रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो घट रहा है टॉप टू बॉटम। उसका रीजन क्या है? टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज एज यू मूव डाउन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, फॉस्फोरस से आर्सेनिक की तरफ आएंगे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, फिर यहाँ एंटीमनी पास आएंगे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है नाइट्रोजन का, एबनॉर्मली हाई है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसलिए जो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के नज़दीक है, एकदम नज़दीक है, यहाँ पर सेंटर के पास ही है। तो अगर ये जो तीनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चारों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एकदम नाइट्रोजन के नज़दीक है, सेंट्रल पॉइंट के नज़दीक है, तो सारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़दीक नज़दीक हो गया कि नहीं? इस दोनों के बीच में दूरी, इस दोनों के बीच में सब नज़दीक हो गया। तो नज़दीक नज़दीक में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा? रिपल्सन ज़्यादा होगा। नज़दीक नज़दीक में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा? रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो सब दूर भाग जाएगा। तो इसलिए बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सारा का सारा दूर भाग गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के एकदम नज़दीक है, यानी सेंट्रल पॉइंट के नज़दीक है। तो सेंट्रल पॉइंट पे रहेगा तो या नज़दीक नज़दीक हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए ज़्यादा रिपल्सन हुआ और ये बॉन्ड जो है दूर भाग गया। ये बॉन्ड जो है नज़दीक नहीं रखे, थोड़ा दूर भाग के रहा। तो क्या हो गया? बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जो है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए है, ठीक है। अब जब हम फॉस्फोरस में आए, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फॉस्फोरस का, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ कम खींचेगा, यानी सेंट्रल एटम से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा दूर रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूर में दिखाए हैं। यहाँ पर देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नज़दीक में दिखाए नाइट्रोजन के, लेकिन यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हम दूर दिखाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है। तो दूर हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पर नहीं रह के यहाँ आ गया। यहाँ पर देखो नज़दीक में, नज़दीक में, सब नज़दीक में है नाइट्रोजन के। यहाँ पर देखो तीनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से दूर है। तो जैसे ही दूर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये जो तीनों पेयर है इलेक्ट्रॉन का, चारों जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, उसमें डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस जब बढ़ गया तो उसमें रिपल्सन कम होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम रिपल्सन। तो जब रिपल्सन कम हो गया, ठीक है, तो रिपल्सन कम हो गया तो बॉन्ड दूर नहीं रह के नज़दीक आ गया ना। रिपल्सन ज़्यादा रहेगा तो वो दूर में रहेगा, रिपल्सन कम रहेगा तो बॉन्ड नज़दीक आ जाएगा। तो जब बॉन्ड नज़दीक आएगा तो बॉन्ड एंगल घट गया, इसलिए 107.8 था यहाँ बॉन्ड एंगल, है ना। ये बॉन्ड एंगल कितना था? ये बॉन्ड एंगल कितना था? 107.8, 107.8। अब वही बॉन्ड एंगल यहाँ पर घट गया, ये हो गया 93.6, ये हो गया 93.6, ठीक है।
अब ड्राइंग मेरा उतना परफेक्ट नहीं है, तुम लोग अपना परफेक्शन के साथ बना लोगे, ठीक है। उसी तरह से जब हम इससे इसमें आएंगे तो इसका और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ से उठ के यहाँ चलाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ चलाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ चलाएगा, किस में, AsH3 में। तो और सेंट्रल एटम्स और दूर हो गया, सेंट्रल एटम्स और दूर हो गया तो इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जब डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्सन कम हो गया, और रिपल्सन कम हो गया तो बॉन्ड जो है नज़दीक आ जाएगा। तो बॉन्ड नज़दीक आएगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा कि नहीं, इसलिए यहाँ बॉन्ड लेंथ और घट गया। फिर इससे जब इसमें आएंगे तो और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेंट्रल एटम से दूर और दूर चलाएगा, उठ के यहाँ चलाएगा, उठ के यहाँ चलाएगा, तो और दूर हो गया। तो दूर होने के चलते क्या हो गया कि रिपल्सन, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो कम होता गया। और जब बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन कम हो गया, तो बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन जब कम हो गया तो बॉन्ड नज़दीक आ गया। बॉन्ड नज़दीक आ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, घट गया। इसीलिए जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप 15 में, तो जो हाइड्राइड्स है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, उसका बॉन्ड एंगल जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज करते रहता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, विल मीट अगेन टुमारो।